Are you confused about what to do after CA? You are not alone. With so many career paths opening up for us, it's natural to feel, confused and overwhelmed. But don't worry. With this interview series, today I'm here to explore one of the most exciting and in demand career options after CA, that is, business automation consultant. Hello everyone, this is CA Priyanka Chen and welcome back to my channel, The Light Baker. Today, joining us as an expert in business automation consultant is CA Pankaj Jain from Guwahati, Assam. He's an expert in Google Sheets, data analysis, business automation, workflow management, and business autopiloting. He's a qualified chartered accountant, company secretary, AMCOM, and DISA. He's also a faculty on AI for ICAI. And he has helped more than 100 businessmen and professionals in removing leakages, saving time, reducing manual tasks, improving employee and office productivity through digital transformation. He has been the visiting faculty for Guwahati branch of ICAI for more than 12 years. He is also the winner of the first AI hackathon organized by EIRC. He has spoken at various business and professional forums areas like on business automation, CA firm automation and practical uses, cases of AIs for MSMEs, and the last thing that he believes is जो काम automation से हो सकता है उसको खुद को करने की क्या जरूरत. So with this, so here we welcome CA Pankaj Jain, business automation expert. Thank you so much, Pankaj Bhaiya, for joining us today. Thank you for accepting my invitation. I'm sure all the students out here will get to learn a lot from your guidance today. Thank you for inviting Priyanka. So, Pankaj Bhaiya, let's start with your journey. Like, when did you qualify your CA, and what inspired you to get into this journey of business automation? So I qualified my CA in 2007 basically. So as you know, Guwahati, the way we do things in Guwahati, I also started with CA practice only. But side by side, I was also involved in academics actually. But to be very honest, the regular compliance practice was not attracting me. So I was always inclined more towards education and how businesses and even CA firms can enhance their productivity. So during that period, I kept on exploring different productivity tools, and then I sold some automation issues for some clients, some productivity issues for clients. Gradually, the work started coming in this area only, and gradually I left my practice. So that's how it started. Great, Pankaj Bhaiya. That's really nice to know that it's really important that we take up our passion. In whatever we have interest, there only we'll get success and we'll be happy also. So, yeah. So, Pankaj, can you tell us what was the turning point when you realized, the power of automation, like to get into this industry which is new? AI tools are new. So, what was the turning point that made you realize? I think it has been around 3.5 years. It's when we talk about automation, basically, we do not have just to think about automation only. So automation is a mixed concept basically. So workflow management, building systems, how the management can improve, how can the proper delegation can work. All these tools. I'll not call it exactly as automation only. Okay, when system mixed with automation, and now AI is also come. When you mix three of these things, then lots and lots of business problems can be solved. See, whatever we do, let it be business, profession, the most important thing is productivity. True. So when we talk about productivity, saving of time, right? Yes. Suppose if a business is purely and totally engaged in operations, which can actually be solved by just setting up a system only. Yes. Okay. Yes. But because he doesn't have a system, he has to keep himself engaged in lots and lots of operational works. Okay. Yes. So what we have to do is we have to set up perfect workflows for business that that makes him free from the operational and manual things which he has to do consistently. Day to day. Okay. Yeah. So what it happens like this, like once we set up a system, okay. So let us say that system is 5 steps, and those steps are repetitive, right?
Yes. So it should be like this. As soon as we start the first step, all the other steps should be completed by the team without owner's intervention or least owner's intervention. Correct. Okay, Yeah. so that is the perfect way in which the productivity can be achieved and the automation will work for your business. Like how being a CA shaped your approach towards this profession, towards this basically career journey. Yeah. I think that was the most fundamental thing. Mm. That's why because I'm a CA, that's why I'm able to understand businesses problems very quickly. Very quickly, correct. Right? Yes. So that experience of articleship, right? We get to go through different businesses. We get to understand different kinds of issues which businesses are facing while doing audits, while doing internal audits. And then if you have a nick of technical knowledge, right? So along back while I was doing graduation, actually I had learned coding also. Okay, nice. Okay, so once I did my CA, so after graduation, there was no use of coding. Yes. So while solving the issues, then suddenly I realized that whatever code is being used, that I have learned earlier. So I started understanding the code and before. Then gradually, when you keep doing, you can start building your own system. Basically, so that's how the journey. You were very curious about the subject. That made you realize that this is the right career for you. Yeah, definitely. For students, I will say that one, you should have a natural inclination for IT. Yes. That is a must. Important, yeah. That of course is a must. Then I feel that different people have different habits basically. So I have a habit of exploring the productivity tools. So that learning happened naturally. So earlier there were not many sources for learning also. But these days we have AI and so much content is already there. So one can learn it. So your question. So as a chartered accountant, we get to understand the business problem very quickly. And in this area of work, the most important thing is whether you are able to understand the client problem quickly or not. Okay. So the problem definition is the most important thing. Once the problem is defined properly, then you will be able to give a solution. Correct. So basically, any student who has an interest in IT, who is curious about learning coding and all the automation stuff, might get into this career journey also. Definitely, yes. So, Pankaj Bhaiya, can you tell me what inspires you to focus on helping business professionals streamline their workforce? There has to be some inspiration to help others. This is like a service you're providing. So what inspires you to do this? See, as we say, client is our goal, Yes. If you feel that, I'll share you the story of my first client basically. So what happened, lots and lots of operations were there, different kinds of operations. So I could sense that there are lots and lots of productivity issues. And there are lots and lots of places where owners are engaged, and those situations can be resolved just by putting a system. Okay. So I experienced significant increase in the client's turnover in the very first year. Oh, great, nice. Yeah, so that started inspiring me. Yes. The problem. It's very important to find the problem and get the solution to get into anything. Yeah. There is a problem. You put a solution, and let's say that solution works. Correct. Nice. So then that inspiration naturally came then. Yeah. Nice. Great. So let's start with the basics. Like for all the students out there, just tell us what business automation means. Yeah. Basically, it's very simple. मैं हिंदी में एक बात बोलता हूँ कि सपोज करिए कि हम जब गेहूं पीसते हैं, ओके, तो चक्की में पीसते हैं, if you remember, ओके, तो लेट अस से कि गेहूं को चक्की में डाला, वो पहला काम है. आफ्टर दैट ऑल स्टेप्स आर डिफाइंड कि चक्की में डालना है, उसमें पानी मिलाना है, आटा उसलना है, रोटी को बेलना है, पैक करना और क्लाइंट को डिलीवर करना है. सो लेट्स से दिस इज द एंड उसके बाद बिल बनाना और पेमेंट के लिए फॉलो अप करना है. लेट्स से समवन मेक्स रोटी ओनली, ओके, सो दिस इज द वर्क फ्लो, राइट? नाउ लेट अस से आई सेट अ सिस्टम. इफ आई डोंट हैव अ सिस्टम, मेरे को हर चीज के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा.
I'll have to follow for every step. And just imagine that there are thousands of transactions and there are multiple employees and tasks are pending at every stage. So if one doesn't have a system, you can see the owner will have to himself, get himself engaged. Get involved in every step. हाँ, कि कौन सी स्टेप पे क्या क्या अटका हुआ है, तो he'll become more वो engaged. strategic decision भी नहीं ले पाता if he is involved in daily operations. Yeah. Correct. That is the significant thing you have understood, that if you have to take the strategical decision, focus on getting the work, but once you get the work, all steps should be done by the team, and for that you have to have a system, and at times automation is also required. Okay, so that is the whole thing. Yeah. This is business automation, and this is actually important and crucial if you want to scale up your business. If you want to automate, there is a concept. There is a concept called task dependency. When one task is dependent on this task is dependent on the previous task. So once the previous task is completed, the next task should automatically be created. Okay, correct. Now, so till that entire flow gets completed. So that could be a simple example of, simple way of understanding automation. So can you please elaborate how does business automation specifically benefits chartered accountants also? To be very honest, we have got chartered accountants as our clients also. Okay. So I'll tell you, I'll explain this workflow in simple language. Step 1 है कि client से data मांगो. हाँ. Okay, step 1. Step 2 है GSTR 1 फाइल को. हाँ. Step 3 है फिर से GSTR 3B का डेटा मांगो. I think there is something कुछ मांगना पड़ता है. उसके बाद फिर 3B फाइल करो. उसके बाद बिल बनाओ. This is a simple thing, and just assume कि आपके पास 100 फाइलें हैं, 150 फाइलें हैं. So even this becomes difficult. Yes. Every month अगर same process करना है तो हाँ, वो चीज भी difficult होता है. Plus, अब इसके अंदर automation opportunities क्या हो सकती है? I'm taking an example of what you do. Okay? ये automation हो सकती है कि suppose करो मैं बटन दबाऊं और सबको individual message चला जाए. Dear sir, please send your documents, जिसको मैं manually कर रहा था. भैया कागज भेजिए, भैया कागज भेजिए, भैया कागज भेजिए. Let's say I have a focused list of GST monthly return, और एक कॉलम के अंदर मेरे पास क्लाइंट्स के नाम है, एक कॉलम के अंदर मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर. मैं प्रेस करूं और सबको पर्सनलाइज व्हाट्सएप मैसेज चला जाए कि डियर सर प्लीज. तो आप देखोगे कि 80% लोग तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आप मांगो तो. इट्स नॉट ओनली क्लाइंट्स का प्रॉब्लम, हम भी तो फॉलो अप करने में डिले कर रहे हैं ना. दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम. हम लोग भी लास्ट में फॉलो अप करते कि डेटा भेज दो. तो जस्ट इमेजिन कि वो 2 तारीख को ही हो जाए. फिर क्योंकि हमने सिस्टम बना के रखा हुआ है, तो वी हैव गॉट एग्जैक्ट माइक्रो लेवल पेंडिंग लिस्ट फॉर एवरी स्टेज ऑफ आवर वर्कफ्लो. तो इतना का मान लीजिए 100 क्लाइंट है, 60 क्लाइंट्स का फॉर एग्जांपल डेटा आ गया, तो 40 का एग्जैक्ट बचा, तो मैं फिर बटन दबाऊं 4 तारीख को और फिर से लेट्स से उन्हीं को वापस मैसेज चला जाए. तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन. तो एक तो वर्कफ्लो है, वर्कफ्लो के साथ notification and communication can also be automated. Right. तो यहाँ पे हमने bulk communication को क्या कर दिया, automate कर दिया, जिसके लिए हो सकता है कि we could have had a separate staff for just following up, या फिर chartered accountant खुद follow up कर रहा है. Follow up करे, correct. हाँ, तो वैसे ही मार्केटिंग नहीं कर, एक बटन क्लिक में आपके पास सारा फॉलो अप चला जाए, सारे क्लाइंट्स रिप्लाई कर दे. वैसे ही हम मार्केट नहीं कर सकते. Correct. So better client service, good client service, okay, that is fundamental. I feel this strongly. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने बात किया है. The fundamental, even when I used to do practice, मेरे पास follow up was the biggest problem. But if we could automate that, okay, the time saving can be significant, and the client will also feel happy कि भाई काम डेटा मेरे पास टाइमली आ गया, डेटा मेरे पास follow up के लिए. काम हो रहे हैं, हम लोग का काम वहाँ पे हो रहा है अपने ऑफिसेस में. राइट. Now this thing can be applied to all the processes of chartered accountants. पंकज भैया, अब मतलब आप बताइए कि as per the as a career opportunity, like as a CA student, how can they take business automation as a career opportunity? So issue ये है कि first of all, as chartered accountants,
we most of the time deal with historical data. Do you agree to this? Yes. True. रिटर्न लगाना historical data का है, ऑडिट करना historical data का है, most of the things historical data का है. तो इतने दिन से the chartered accountants have been dealing with the historical data, right? अब clients की business problems जब होती है तो वो business coaches के पास जा रहा है, and you know there are many जा रहा है. Now just imagine कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर वो सर्विस भी शुरू कर दें, तो आई टेल यू, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिटर्न भी लगाता है और वो अगर बिजनेस मैनेजमेंट का भी सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दे, ओके, हाउ यू कैन, यू नो, आई कैन हेल्प, क्योंकि डेटा तो पहले से शेयर्ड है, मोस्ट ऑफ द डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का शेयर्ड रहता है, देयर इज, यू नो, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, सब कुछ है. तो वो अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा कि यार मैं कोई अनजान आदमी के साथ शेयर कर रहा हूँ. सो हाउ प्रेजेंट डेटा ऑफ द क्लाइंट इज द न्यू स्कोप. हिस्टोरिकल डेटा से प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आने ही ना दें. करेक्ट. नंबर लीकेजेस को कैसे मैं तुम्हारे दूर कर सकता हूँ, दैट इज वन एरिया. दूसरा बात है तुम्हारे लिए मैं डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ. यू नो, आई हैव ए फ्रेंड अनमोल लोहिया इन सूरत. ओके, so he is expert in just developing dashboards for corporates. Okay, that कोई दूसरी प्रैक्टिस या वो कॉर्पोरेट्स के लिए डैशबोर्ड्स बनाता है. सो दैट्स, यू नो, अनदर, ये सब रिलेटेड लाइंस है, राइट? बिजनेस ऑटोमेशन. ओके, तो डेटा एनालिसिस इज अनदर एरिया. तो जिनको एक्सेल अच्छा लगता है, गूगल शीट्स अच्छा लगता है, ओके, तो डेफिनेटली वहां पे स्कोप है. फिर हाँ, डेफिनेटली फिर उसके साथ में अगर थोड़ा कोडिंग भी सीख लिया जाए. और अब क्या है कि यू डोंट हैव टू बी हार्ड कोड कोडर. आपको एक लैंग्वेज का आइडिया होना जरूरी है और प्रॉब्लम का डेफिनेशन आपके पास होना जरूरी है. वंस यू हैव द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, हाउ इट विल बी सॉल्व्ड, ओके, थोड़ा आपको कोडिंग का नॉलेज है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई एंड गेट द कोड्स डेवलप्ड. करेक्ट. एंड यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ द कोड. आपने रन किया, नहीं चल रहा है, देन यू कैन टेल द AI itself. अब तो बहुत इजी हो गया. थ्रू AI you can actually solve most of the things. CA स्टूडेंट, मतलब द थिंग इज कि सिंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत कुछ पता होता है बिजनेस के बारे में, चाहे वो CA फर्म्स हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, इंटरनली एक एक चीज हमें पता होता है, तो वी नो द प्रॉब्लम्स. तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. मतलब इसको ऐसे समझना है कि AI has opened new doors for us. Correct. I had to work very hard to learn, you know, basic code. तो हो सकता है कमांड ज्यादा हो, I can write code itself, but अभी आपको समझना काफी है, प्रॉब्लम को समझना काफी है. एंड क्लाइंट अगर आपसे बात कर रहा है और प्रॉब्लम बता रहा है, यू कैन, यू नो, कि भाई आप ऐसे करो, इस तरह. तो देयर इज एन एरिया फॉर कंसल्टेंसी फीस, huge area. Okay, so there I feel there is a scope. Definitely there is a huge scope. Okay, so मतलब according to you कुछ additional skills या certifications एक CA को करना चाहिए कि if he wants to get into this field? 100%. Even while doing orientation in GMCS programs, AMCS programs, I also say this. CA qualification तो अपनी जगह है. See, अभी मैंने CA में सीखा 234A, 234B, 234C, computation of income. Most of the CAs तो don't do it. फिगर्स अपन डालते हैं, कंप्यूटेक्स या जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन ओनली ना. तो अब जब वो काम नहीं रहा, से फॉर एग्जांपल, तो अब क्या स्किल्स और सीखी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है या जो भी इस चीजों को सीखना है, फंडामेंटल थिंग, फाउंडेशन में आपका एक्सेल, गूगल शीट्स, अगर आप गूगल पे कंफर्टेबल है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर कंफर्टेबल इन एक्सेल, हम नेचुरली सीखते जा रहे हैं, तो आपका स्प्रेडशीट्स पे कंट्रोल जबरदस्त होना जरूरी है. ओके, कॉम्प्लेक्स तो आपके पास बेसिक एक्सेल का नॉलेज, एडवांस्ड एक्सेल का नॉलेज, उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि VBA जिससे मैक्रोज बनते हैं, यू नो, एक्सेल में मैक्रोज होते हैं. स्कूल में बेसिक एजुकेशन तो मिला था VBA का, पूरा विजुअल बेसिक. करेक्ट. तो बट VBA पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ओके, जस्ट बाय लर्निंग VBA, है ना. बोलते हैं ना कि आप अपने अंगुलियों पे एक्सेल को नचा सकते हैं. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ VBA, दैट इज वन थिंग. सेकंड, आपको पाइथन सीखना चाहिए. ओके.
ओके, उसके साथ में अगर किसी को एडिशनली HTML CSS वगैरह का भी नॉलेज हो जाए, ओके, तो उससे आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए वेब एप्स बना सकते हो। अच्छा, जो उनको एक महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता, तो आप उसके लिए वेब एप्स बना सकते हो इफ यू गॉट नॉलेज ऑफ HTML। सो बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्लस VBA, पाइथन, गुड स्प्रेडशीट्स का नॉलेज, डेटा एनालिसिस के लिए पावर BI, प्लस एक चीज हॉट चल रही है अभी, वो है टेब्ल्यू। ओके, टेब्ल्यू बोल के भी एक चीज होती है। प्लस फर्दर अगर ऑटोमेशन करना है तो आजकल टूल्स आ गए, जेपियर, ओके, जेपियर बोल के टूल है, पेबली बोल के टूल है, make.com is another tool, ओके। प्लस अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल है तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, ये रेडी ऑटोमेशन टूल्स है। ओके, प्लस अब अगर गूगल पे कंफर्टेबल है, से फॉर एग्जांपल, तो यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ गूगल ऐप स्क्रिप्ट। अच्छा, अच्छा, वो अपना लैंग्वेज है उसका, वो दैट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट बेसिकली। अच्छा, तो उससे आप गूगल प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, ओके, सो दो तीन तरीके की चीजें, अगर आप गूगल पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग तरीके से ऑटोमेशन करना पड़ता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो तो अलग, इवन जोहो का भी अपना ऑटोमेशन थिंग्स है, ओके। सो दीज आर प्रिंसिपल, इन चीजों पे अगर फोकस किया जाए तो मोर और लेस एटलीस्ट SME लेवल पर हम बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, उस कंसल्टेंसी लाइन में जा सकते हैं बेसिकली। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है इसमें कि एक CA है तो उसे प्रॉब्लम्स ये सब पता है एंड ही नोज हाउ टू क्रैक सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स, बट ये सब का नॉलेज होते ही वो आराम से पूरा कंप्लीट एक कंसल्टेंट बन सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। so you must be fascinated with business problems। यस, यस, ट्रू। ठीक है, so that जहाँ पे भी क्यूरियोसिटी आएगा वहां पे मजा ही आएगा। हाँ, तो वो वाली बात। How does the knowledge of business automation make a CA more valuable to its clients if we have both the knowledge together? As a business automation expert, I keep on talking with the businesses. Okay. मैं जब businesses से बात करता हूँ तो एक उनको बड़ी तकलीफ होती है कि they have to pay fees to chartered accountants or consultants for filing returns. उनको वो cost लगता है। That is Try to true. understand. That is true. तकलीफ होती और है यार, pays रिटर्न it. लगा। तो वो उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का खर्चा समटाइम्स इट्स अ कॉस्ट। जस्ट अब उसको एंगल को चेंज करो कि अगर आप उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दें, राइट, और अपन बोलें कि ठीक है आप मेरे को तो थोड़ा सा फीस दे रहे हो, ओके, लेकिन मैं आपके सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेव करके दूंगा, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है उससे, they'll see the value दिखेगा। हाँ, मैं आपके सेल्स को एनहांस कर, just removing the leakages in your entire, let us say, order to payment system example, कि order से लेकर payment में let us say कि 12 steps है, अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, कोई के 6 steps होते हैं, कोई के 12 steps होते हैं, और मैं उसको ऑटोमेट कर दूंगा और आपका टाइम बचाऊंगा, so that you can focus more on strategy, more on growth। करेक्ट। तो यहाँ पे आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो, राइट। तो उन्हें वो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हाँ हम तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी वी आर गुड एट एवरीथिंग, राइट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को व्हाई नॉट, इट शुड नॉट बी एरिया कि लीकेज रिमूवल इज अ वेरी नाइस बिजनेस एरिया। ओके, तो इस तरह से बिजनेसेस की कॉस्ट कम कराओ और रेवेन्यू को इंक्रीज कराओ। हाँ, तो बेसिकली बिजनेस हाउसेस लोग को दिखेगा कि वैल्यू एडिशन हो रहा है उनके बिजनेस में, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, सेल्स ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रहा है, तो अपने आप ही। I'll tell you an interesting thing। एक दो क्लाइंट मैंने स्टार्टिंग में ऐसे भी किए, एक्चुअली अब तो नहीं कर रहा, ठीक है, कि जिन्होंने हमको प्रॉफिट पे शेयर दिया, टर्नओवर पे शेयर दिया, बिकॉज आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, तो वो कमीशन या जिस तरीके से बोल सकते हो कंसल्टेंसी फीस का कैलकुलेशन जो है वो दैट वाज बीइंग कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कि कितना मेरा इंक्रीमेंटल टर्न, जैसे इनकम टैक्स की स्लैब्स होती है ना, हाँ, वैसे इंक्रीमेंटल, तो उसमें विन विन उस हिसाब से कंसल्टेंसी फीस आपका, हाँ उसमें विन विन है। विन विन क्या है कि भाई इतना % इंक्रीमेंट तो आपका नेचुरल ग्रोथ है इतने सालों से, आई वोंट टेक एनीवेयर, बट उससे अगर ऊपर हुआ
So that is happening because of the systems we inculcated. Okay. Then only you have to give me share Right. as the consultancy fees. हाँ. तो ऐसा भी हाँ. बीच में फिर क्या होता है कि मान लो जो एक साल आपने स्ट्रीमलाइन किया तो वो क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाता है, बोला कि सर अब हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं. तो इस तरीके का चीज भी होता है कि फॉर द फर्स्ट ईयर यू कैन टेक दिस बिकॉज आपका भी पेन ज्यादा होता है. फिर चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है तो ठीक है, क्लाइंट को तकलीफ होगी बाद में फीस देने में, तो ठीक है. सो दैट वे आल्सो देयर इज अ स्कोप देयर आल्सो. पंकज भैया, आप मेरे को बताइए कि हाउ डज ऑटोमेशन कंसल्टेंसी डिफर फ्रॉम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो सीएस लोग नॉर्मली करते हैं, ऑडिट, टैक्सेशन एंड ऑल. तो हाउ इज इट डिफरेंट? Totally different. Totally different. Okay. Yeah, here I'm dealing with the live data. Oh yes, here we are talking about the historical data. That is the fundamental difference. Okay. Here you can take one month-on-month consultancy. Yes. Okay, you can give targets to the. You can see. You can, if you can understand the problem. If you can understand the problem properly, you can give a solution and assure client that because of this solution, okay, आपका ये चीज ठीक हो जाएगा. राइट. भी डेटा एनालिसिस तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना. वी मेक बैलेंस शीट्स, वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव गॉट ऑल द फिगर्स. ओके, नाउ इशू इज कि भाई मेरा ये चीज गिरा, जिस चीज को बढ़ना था वो अगर चीज गिरा, यू नो द रीजन, यू डोंट नो हाउ टू इनकलकेट सिस्टम फॉर द क्लाइंट. करेक्ट. देन देयर इज अ कंसल्टेंसी देयर. एंड इफ सीएच स्टार्टेड, उसको पिच शायद नहीं कर रहे हैं, अगर वो पिच करना शुरू करें तो उसके लिए भी फीस मिलती है. नॉर्मल कंसल्टेंसी तो हम लोग देते ही हैं ऐसे भी, नॉट टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन अभी तक, जो अब स्टार्ट हुआ है. मतलब वही प्रॉब्लम है ना, उसका फीस कैसे लिया जाए, दैट इज द फंडामेंटल थिंग. राइट. नेक्स्ट पंकज भैया, एज अ बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया अपने प्रोफेशन में? मतलब व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस यू मस्ट हैव फेस्ड इन दिस जर्नी. तो वो क्या क्या थे? Lots and lots of challenges. सबसे पहले तो acceptability of the client. राइट. नया प्रोफेशन. I'll say it in a different manner. कि सबसे पहले तो उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, नंबर 1. न्यू करियर एक्चुअली, क्योंकि पहले नहीं था. फिर 1-to-1 करके जो क्लोज क्लाइंट्स है आपके ऑलरेडी, उनको कन्विंस करना कि आप ये करवाइए. फिर स्टार्टिंग में सेम सॉल्यूशन को डेवलप करने में आई टुक 3.5 months से, फॉर एग्जांपल, जो मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ. ओके. वो एक अनदर लर्निंग चैलेंज. प्लस आज तो एआई बहुत कुछ कर रहा है. मतलब अगर मेरे को ये बोला जाए कि मेरी टीम में द मोस्ट एफिशिएंट स्टाफ कौन है, तो चैट जीपीटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो ट्रू. हाँ. ठीक है ना. तो वो वाला, तो उस समय तो वो कोई नॉलेज बेस भी नहीं था. ओके, तो ट्रायल एंड एरर टुक अ लॉन्ग टाइम. प्लस मार्केट में क्या चलेगा, आप कुछ दे रहे हो, सी बोलेगा कि मैं क्लाइंट फीस देने के लिए तैयार है कि नहीं. सो दैट वाज अनदर चैलेंज. ओके, सो जब कोई भी चीज आप बेस से सेटअप कर रहे हो तो डेफिनेटली चैलेंज एट एवरी स्टेज. ओके, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, लर्निंग न्यूअर थिंग्स, कैसे ऑटोमेट होगा, हो सकता है ये पता हो नहीं, ये पता है कि हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पता है कि हो सकता है, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस थिंग. हो सकता है ये पता है, बट स्टार्टिंग में ये चैलेंज थे कि कैसे होगा. ओके, तो आपको टाइम बहुत लग गया, क्लाइंट को आपने बहुत लो फीस कोट कर दिया. सो कैसे फीस लें, क्या फी का शेड्यूल होना चाहिए, कैसे रेकरिंग फीस लिया जाए, क्या फी स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई मार्केट नहीं है अभी फिलहाल के लिए. यस. सो वो सारे चैलेंजेस स्टार्टिंग में फेस किए थे. फिर gradually you get like you address all the things, सब चीज स्ट्रीम. मतलब it's not only the art to it's not sufficient that you have a skill. बेचना is a different skill. You need to sell also. You need to learn how to sell it. Yes, that is a different skill altogether. So Pankaj Bhaiya, like in this profession, like how do you see this in future? What's the growth of business automation consultant maybe 5 years down the line? I think, as I told you, there is a tremendous scope.
Around a chartered accountant, there are hundreds of clients. Correct. True. Hundreds and hundreds of clients. Okay, so besides return filing, there are lots and lots of problems they are facing. Okay, every problem is an opportunity for consultancy fees. True. Right? So we do not have to think just from the perspective of consultancy fees. Of course, we feel happy when we solve a problem for our client. Obviously, huh? And client is happy to pay, I tell you, if you are really able to solve this problem. If they get the value out of it, तो उन लोग pay करने के लिए they will be happy only. They'll get the result. Definitely. Yes. See, business automation is a stress buster. True. For your business. True. Yes. True. Building system to convert your entire business into autopilot mode is something which every business house wants. एक बात और ऐड करता हूँ. मतलब होता क्या है कि I see around me hundreds of businesses जिन्होंने बड़े-बड़े कोर्सेज कर लिए. कोर्सेज महंगे लाखों रुपए लगा के they have done courses. खुद किया है मतलब ओनर. हाँ, क्योंकि बिजनेस देखिए मार्केट में तो मार्केटिंग तो खूब सारा हो रहा है ना. हाँ, कभी ये कोच, कभी वो कोच. यस, आई एम नॉट डिनाइंग कोचेस का प्रॉब्लम नहीं है. दे आर डूइंग गुड वर्क. ठीक है, लेकिन कोचिंग किया, सीखा. द रियल चैलेंज इज इम्प्लीमेंटेशन. एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट. इम्प्लीमेंट करना है. तो क्या होता है कि हैंड होल्डिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स कैन डू. कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वो उनसे पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड है. डे टू डे कनेक्ट रह सकते हैं उन लोग के साथ. Yes. So that is why we've got a huge scope there. True. Like what, according to you, like what role does emerging technologies जो आए ना, AI tools, ChatGPT और भी बहुत सारे tools है, Gamma app, and there are many AI tools जो अभी in the market है, जो अपने को help भी करते हैं in our process. तो उसका क्या रोल है ऑटोमेशन में? आई थिंक ऑटोमेशन तो पूरा ही उस पर डिपेंडेंट है. पूरा ही बेस उसके ऊपर है. इन द सेंस कि ऑटोमेशन के लिए आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की जरूरत होती है. अगर आप स्प्रेडशीट्स यूज कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज आपको डेवलप करने पड़ते हैं, लंबे इफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. जिसको आप अगर वो इफ फॉर्मूला खुद लेके बैठोगे ना, इट विल टेक एंडलेस नंबर ऑफ टाइम. तो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है. बट आप आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में इफ यू एक्सप्लेन द एंटायर प्रॉब्लम कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, इवन इन हिंदी, तो भी वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे. यस, कि मेरे इस कॉलम के अंदर ना ये है, ये कॉलम में ये पड़ा हुआ, ये कॉलम में ये पड़ा है, मैं इस कॉलम में हूँ, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जो ये करके ये कर दे. ओके. जस्ट इमेजिन इट गिव्स यू एन एक्सेल फॉर्मूला और गूगल शीट फॉर्मूला, एंड देन if it is not 100% correct, let it be 80% correct. You can keep on working on that formula. Yes. So this will help you to analyze. This helps in business analysis. So AI आपके लिए complex formulas develop कर सकता है. That is one thing. So यहाँ पे you have to know Excel. ये नहीं कि आपको Excel भी नहीं आता है. आपको बेसिक्स आना चाहिए. कॉम्प्लेक्स चीजों पे आपको जो कोई एक बहुत एक्सपर्ट पे डिपेंडेंस था, वो नाउ we throughout the day, कोई एक दिन नहीं होता कि we do not touch Excel or we do not touch a spreadsheet. Every day हमें काम पड़ते. तो we all know, we are familiar with that. Only thing is what कि तो एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज डेवलप करने, तो जो यूजुअली हमारे डे टू डे काम नहीं आता, वो वही गिने चुने 8, 10, 15 फॉर्मूलाज वही हमारे काम आते हैं. बट देयर इज अ लॉट टू इट. हम लोग सोच नहीं सकते उतना कुछ है अभी एक्सेल के अंदर, गूगल शीट्स के अंदर. तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज अभी एआई आपको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बनाना है, पूछना है, एंड एआई विल डेवलप दोस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज फॉर यू. सो दैट इज वन थिंग. नंबर 1, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोड से ये चीज सॉल्व तो हो सकती है. मतलब कोड की बारी कब आती है? कोड की बारी तब आती है जहां फॉर्मूलाज फेल हो जाते हैं. राइट. Sometimes analysis becomes so huge that the codes work ही नहीं करते उसपे. या फिर कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कोड से स्प्रेडशीट स्लो हो जाती है. और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड द फॉर्मूलाज होते हैं.
जस्ट इमेजिन कि मैं बोलूं कि मैं एक सेल में यस लिखूं और एक नई स्प्रेडशीट बन जाए, नई शीट इंसर्ट हो जाए। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट। यू नीड ऑटोमेशन, यू नीड कोडिंग है। कोडिंग। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज है कि इससे हो सकता है, तो आप अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करो और बोलो कि राइट मी अ VBA कोड। अच्छा, इट विल राइट इट। विल राइट अ VBA कोड। आप उसको टेस्ट करो, फिर उसको बोलो कि डिडंट वर्क व्हाट आई डिजायर्ड, उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, देन इट विल गिव द अपडेटेड वर्जन ऑफ द कोड एंड यू विल। तो ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस तो वी कैन डेवलप ना। बहुत कॉम्प्लेक्स के लिए मे बी कि आपको कोई कोडर या डेवलपर की जरूरत पड़े। ओके, तो बेसिक्स तो छोटा छोटा सॉल्यूशंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, इसके थ्रू निकाल सकते हैं, एंड फॉर दैट एआई हेल्प्स। प्लस अब क्या हो गया कि कस्टम एआईज भी आ गए, एज यू टोल्ड गामा एआई। तो किसने किस पे काम किया? एआई, चैट जीपीटी, गामा, गूगल जेमिनी, क्लाउड एआई, राइट, फिर को पायलट हो गए। तो ये पॉपुलर टूल्स है। अब क्या हो रहा है, सब यूज करते हैं आजकल, कैमरा बहुत हिट है या इसके बेस के ऊपर बाकी एआई टूल्स बन रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे चैट जीपीटी से जनरलाइज्ड AI tool, right? Copilot is a generalized AI tool. अब फिर बन के आ रहे स्पेसिफिक AI tools, ओके, जो सिर्फ वही काम करते हैं जो जिसके लिए वो एक्सपर्ट है। अच्छा, यू कैन से MBBS और MD, या तो इस तरीके की AIs भी आ रही है। अपना भी ICI का भी है ना एक AI। यस, ICI का CA-GPT है, और भी एक GPT इंडस्ट्री के डेटा के ऊपर आया है अभी। तो CA-GPT में इन्होंने क्या कर दिया, मल्टीपल नॉलेज बेसिस क्रिएट कर दिया। That's great. से फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स का आज तक का जितना नॉलेज बेस है उसका उन्होंने कस्टम GPT बना दिया। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो कस्टम GPT क्या होता है? कस्टम GPT से फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नॉर्मल MBBS डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मैं उसको, वो पूछेगा अच्छा आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोले मेरे है ना स्किन में प्रॉब्लम है, करेक्ट। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो क्या वो बोलेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है? उसको पता है प्रॉब्लम स्किन के लिए आया है, करेक्ट, स्किन के लिए आया है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ICI ने क्या किया, मल्टीपल कस्टम GPTs बना दी। ओके, तो अगर आपका प्रोफेशनल एथिक्स है, उसको पता है कि यहाँ पे उसके पास एक नॉलेज बेस, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ कस्टम GPTs और नॉट, तो नॉलेज बेस अलग अलग सेटअप करते हैं। और वहां जब हम लोग बोलते हैं तो उसके पास जितना इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, केस फ्लोज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जितना है, इवन द न्यूज लेटर्स, व्हाटएवर, ओके, वो सारा, वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन, वो आपको परफेक्ट आंसर निकाल के दे। मैंने देखा था क्योंकि एक लिंक भी आया था सी इंस्टीट्यूट से। इट्स वंडरफुल, तो वी मस्ट यूज इट। ओके, तो वो तो they are specialized GPT, each GPT is dedicated to one specific area. Students के लिए भी GPT आ गया है, तो students must already be using it. Okay, है ना? तो पढ़ना भी आसान हो गया, everything is available there, तो easy. आप मेरे को बताइए कि कैसे एक CA can be ahead of time, like बाकी लोगों से एक CA कैसे आगे रह सकता है अगर उसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, और CA में तो फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग फंडामेंटल्स तो अपना क्लियर ही है। तो इफ यू वांट्स टू स्टे अबव द कर्व, देन हाउ कैन दे डू इट, लाइक व्हाट शुड दे डू, मतलब स्टार्टिंग में ही? आई थिंक सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि देखो, बाकी सारी कंप्लायंस की चीजें तो वी विल लर्न, हाँ, इसमें तो कोई डाउट वाला बात नहीं है, काम आएगा, वी विल कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं थ्योरेटिकल, हाँ, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखनी पड़ेगी। There is a difference between कि वो तो काम सिखा देगा, कंप्यूटेक्स हमको बोलना नहीं पड़ा, फिर रिटर्न लगाना है, उससे सिखा दिया धक्के मार के, राइट और रॉन्ग, ओके। बट कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे एडवांस एक्सेल सीखना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो पहले जब नॉलेज होगा तब हम क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देना माइंड में आएगा ना। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं, तो हाँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा कि ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसकी फीस भी ली जा सकती है। राइट, तो एडवांस एक्सेल भी सीखना है, पावर BI भी सीखना है, जो आपने टूल्स दिया वो सारा चीज पहले ही सीख लेने से विल बी अहेड ऑफ अदर पीपल। वी मस्ट हैव सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन में सर्टिफिकेशन, जो लोग जॉब में जा रहे हैं स्पेशली आई विल से
कि भी जो जॉब में जा रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग कंप्लायंस वाला चीज उतना नहीं है, उतना नहीं है। हाँ। जो एकदम प्योर उसमें एरिया में जा रहे हैं तो अलग बात है। ओके, बाकी चार्टेड अकाउंटेंट्स आर इन एवरी एरिया। ट्रू ट्रू, दे आर इन ओके, एक्चुअली। हाँ। तो क्या है कि डिसाइड सीए एडिशनल सर्टिफिकेशंस आर ए मस्ट। काम उससे मिलता, सैलरी उससे मिलती, क्लाइंट फीस उससे देते। क्या क्या सर्टिफिकेशंस करना चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर? डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू, एडवांस एक्सेल सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट। अच्छा, इसका अलग पाइथन का सर्टिफिकेशन कोर्सेज है? पाइथन का बिल्कुल सर्टिफिकेशन? 100% पाइथन के सर्टिफिकेशन है, और बेस्ट लिंक्डइन लर्निंग से आप ले सकते हो सर्टिफिकेशन, उडमी से ले सकते हो, और आखिर अभी CAClubindia.com है, उसके अंदर भी काफी सारे सर्टिफिकेशंस हैं, वहां से अपन ले सकते हैं। ओके, तो सर्टिफिकेशन क्या होता है ना, एक आपको एक बेस करता है, बाकी देखिए रियल लर्निंग तो आप खुद करेंगे तभी होगा। सिंपली सर्टिफिकेशन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, बट एटलीस्ट दैट फॉर्म्स ए बेस एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। उसके अलावा सी आई हैव टेकन अ फ्यू सब्सक्रिप्शंस। ओके, एक medium.com करके वेबसाइट है, आई थिंक वर्ल्ड का, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ब्लॉग। ओके, तो वहाँ पे जबरदस्त राइटर्स है, राइटिंग बहुत, आर्टिकल्स बहुत मिलते हैं मीडियम, बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो टेक से रिलेटेड चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। आई हैव टेकन किंडल का सब्सक्रिप्शन। ओके, तो वहाँ पे हम टेक से रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह तो है ही है। फिर इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, नॉलेज। तो नॉलेज लेना इज नॉट अ बिग डील। आई थिंक सीए करते करते ही, those who are young, I am saying, CA करते करते ही, and if they really want to go in industry, okay, I found कि CAs are not even aware कि Office 365 भी क्या होता है, try to understand, है ना, Google Sheets क्या होता है, क्या होते हैं, और इंडस्ट्रीज में उस पे काम हो रहा है, काम उसी में होता है। हाँ, काम हो रहा है उस पे, तो वो गैप तो ह्यूज है, वो गैप ह्यूज। तो एज ए स्टूडेंट ही उसको थोड़ा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। That is the thing. आज की डेट में यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। Yes. तो आप अपने उसको, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप जॉब में हो, ओके, सो व्हाट हैपेंस, एक होता है बनावटी सीवी, एक होता है एक्चुअल सीवी। राइट। ओके, तो अपने आई टेल मेरे सिस्टर को भी मैंने बोला कि भाई अभी से आपका सीवी 2 साल बाद कैसा होगा, visualize that CV, visualize it, right? Okay, उसके हिसाब से you keep learning the skills. That is very important. Very important. True. This is a very important tip for all the CA students. कि पढ़ते पढ़ते ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, just to be written in the CV, but actually you need to be very curious about it to apply it in your because competition अगर 100 चार्टेड अकाउंटेंट्स में हो, सबने सिर्फ डिग्री लिया है, right? तो they are expert at the same thing, same level, yeah. तो उसके बाद आपका जजमेंट जो है वो तो उससे होगा ना कि what additional skills you have, yeah, true. So that is important. Pankaj bhaiya, related to the ethical part, are there any risk related to, associated with automation in business? Any ethical risk or any kind of risk involved? See, definitely, because आप अगर AI से बात कर रहे हो, if I talk about AI, say for example, तो AI से जब बात कर रहे हो, you are sharing your data on the public, so there is a concept called masking. Okay. Masking में क्या होता है, say for example, मुझे computation of income को रिसर्च करना है. Say for example, I tell you an interesting case study. Okay, तो ऐसा हुआ कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ, मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 8 इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं. I'll tell you a good idea also. Okay, 8 इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं, just imagine, right? आप रिटर्न फाइलिंग की फीस लेते हो, एक तो फाइलिंग फीस की भाई रिटर्न फाइलिंग फीस, लेकिन आप उसको कुछ कंसल्टेंसी नहीं देते, टैक्स एडवाइजरी की आपको इस साल ये करना है या समथिंग लाइक दैट. तो लेट अस से कि आपने लास्ट ईयर के सारे कंप्यूटेशंस पिक किए, उससे पैन कार्ड नंबर हटा दो. ठीक है, उसको हम एक तरीके से, आई विल नॉट से कि इट्स एन एग्जैक्ट वे ऑफ मास्किंग, बट आप उसको हटा देते हैं. तो यहाँ क्यों हटाना है, क्योंकि आप पब्लिकली, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, बट पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है, हाँ, वो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक डिटेल्स, उनको आप रिमूव करवा लो, रिमूव करके पुट द डेटा इन द चैट जीपीटी.
ओके और बोले कि इस ग्रुप के लिए मुझे 1 साल का प्लान बना के, ओके उस प्लान को प्रॉपरली ड्राफ्ट तो वो कर ही रहा है, उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके गिव इट टू द क्लाइंट एंड चार्ज एडिशनल कंसल्टेंसी फीस. अच्छा While filing the return, you can say कि भाई आपको ये भी चाहिए क्या, एक डेमो बना के रख सकते हैं कि हम क्लाइंट्स को ये भी देते हैं, दे सकते हैं, राइट, एक एडिशनल तो ये सर्विस. यस एडिशनल एरिया बनता सबको है. टैक्स प्लानिंग करना है फ्यूचर, क्योंकि जो भी चीज हुआ वो हिस्टोरिकल हुआ, फ्यूचर को कैसे ठीक करना है वो तो कंसल्टेंसी के थ्रू ही होगा. सारा चीज अपने को उसी से समझना कि एरिया है प्रैक्टिस का बिसाइड्स कंप्लायंस कंसल्टेंसी. राइट. अब कंसल्टेंसी खाली, अब प्रॉब्लम क्या है, वी आल्सो नो कि क्लाइंट्स आर पे आज इनकम टैक्स का नॉर्मल कंसल्टेंसी के लिए वो आया, आपसे बात किया, यहाँ फीस देने का कल्चर ही नहीं है. कल्चर नहीं, राइट राइट. बट आप उसको एज ए टूल, उसको आप यू नो कैनवा वेरी वेल, कैनवा में बढ़िया से उसको डिजाइन करके ओके मेक अ प्रॉपर रिपोर्ट बना फॉर्मेट, के दे सकते हैं. हाँ कि उसके लिए रिपोर्ट बना के दो. ओके ना. तो कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड जब आप क्लाइंट को देते हो तो मे बी ही विल गिव फीस. आप उसको दिखाओ तो सही कि मैं ऐसा दूंगा. एक्चुअली एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है, इफ यू गेट समथिंग तो उसका वैल्यू पता. हाँ एडिशनल एवेन्यूज का बात करें अगर, तो दिस वे यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई. तो उसके अंदर अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें क्या बताया मैंने कि भी रिमूव द पैन कार्ड नंबर, रिमूव द डेट ऑफ बर्थ एंड रिमूव दिस थिंग एंड देन पुट द डेटा इन द एआई, द पब्लिक. तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को हमको इंश्योर करना है, बिकॉज एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव लर्नड कि कॉन्फिडेंशियल इज द फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक, राइट. तो हम नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम क्यों शेयर करें. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कि हाइड द कोर डेटा एंड देन एनालाइज. इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है, भाई डेटा किसी का भी हो सकता है, बट इफ यू रिमूव द लेट्स से क्लाइंट नेम या कुछ उसकी जगह कुछ XYZ लिख दो एंड देन एनालाइज, that can be done. राइट. तो वो थोड़ा सा हाँ एथिकल कंसर्न उससे कम होता है. Pankaj, we are like you have worked with so many business houses, clients. तो can you share like any success story जो highlight करता है कि business automation is the future? तो any success story which you want to share with the CA students? I think there are many. Okay. Okay, तो मैं recent 2-3 जो हम लोगों ने काम किया I just share. हाँ. So I share all my stories on my LinkedIn also. Okay, okay. हाँ. Okay, so I do it. Okay, तो अभी हाल फिलहाल में very recently I'll share a workflow of a distributor. Okay. Okay, distributor of goods say for example. अब उनका कैसा वर्कफ्लो है कि ऑर्डर लेते हैं, तो ऑर्डर आज ले लिया क्लाइंट से, कस्टमर से, अब उसके बाद भी कस्टमर तुरंत कंफर्म नहीं करता, कस्टमर 4 दिन बाद कंफर्म करता है. तो टिल देन ऑल्दो द ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, बट अभी तक हमको कस्टमर का कंफर्मेशन बाकी है. तो स्टेप 1 टेक ऑर्डर, स्टेप 2 टेक द गेट द कंफर्मेशन. तो जब वो गेट द कंफर्मेशन का मतलब मुझे क्लाइंट को फॉलो अप करना है. ओके, तो गेट द कंफर्मेशन स्टेप 2. स्टेप 3 कंफर्मेशन जब मिल जाता है ना तो इनवॉइस बनता है उनका. ठीक है, राइट. इनवॉइस बन गया, उसके बाद वेयरहाउस वाला कंफर्म करता है आई एम रेडी फॉर डिस्पैच. जिस ऑर्डर का कंफर्मेशन हो जाता है वेयरहाउस वाला कंफर्म करता है कि आई एम रेडी फॉर डिस्पैच. जब वो कंफर्म करता है तो फिर ईवे बिल बनता है. जब ईवे बिल बना फिर जब अगर ईवे बिल बन गया तो डिस्पैच डिपार्टमेंट उसको एक्चुअली डिस्पैच करता है. ओके. डिस्पैच करने के बाद एलआर यू नो, कंसाइनमेंट नोट जो सीएन बोलते हैं अपन उसके, तो सीएन उसको लेना है और कस्टमर को भेजना भी है. और फिर जाके जब वो ये हो जाए फिर हमारे ऑर्डर्स ड्यू फॉर पेमेंट हो जाते हैं. ड्यू फॉर पेमेंट हो जाएंगे. हाँ. उसमें कभी पार्ट पेमेंट भी आ जाती है, फुल पेमेंट भी हो जाती है, और कुछ पेमेंट्स ओवर ड्यू भी हो जाती है. डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट क्रेडिट पीरियड्स. यू सी, एंड जस्ट इमेजिन कि आपको दिन में 100 ऑर्डर्स, सारा स्टेप्स है इसमें इन्वॉल्वड. हाँ, और 100 ऑर्डर्स मिलते हो, आपको 8 से 10 सेल्समैन हैं. इफ यू डोंट हैव एन ऑटोमेटेड सिस्टम, प्रॉपर वर्कफ्लो, तो वो ओनर इसमें एंगेज रहेगा rather than focusing on growth. Correct. We solve this. Okay. Order, हाँ, सब सेल्समैन अपना ही ऑर्डर ले रहे हैं और ऑटोमेटिक सारा वर्कफ्लो चलने लग गया.
फर्स्ट स्टेप होते ही एग्जाम्पल, पूरा ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा पूरा. हाँ, और इसको यू कैन ऑल्सो से बिजनेस ऑटोमेशन, एज आई टोल्ड यू दे आर रिलेटेड वर्ड्स, ओके. तो यू कैन मोर ओवर से कि ऑटो पायलटिंग इज द मेन वर्ड. ऑटो पायलट करना ही. ऑटो पायलटिंग के लिए यू नीड टू लर्न ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, राइट. करेक्ट. तो ये एक मैंने केस स्टडी आपको बताया कि किस तरीके से ये ऑटोमेट होता है. दूसरा आपको एक केस स्टडी बताता हूँ. अभी ट्रेवल एजेंसी का हमने काम किया. यू वॉन्ट बिलीव, उनके वन ऑफ द पार्टनर्स का खाली एक ही काम था, दिन में 4 घंटा खाली एक गूगल शीट. उनके ट्रेवल का सॉफ्टवेयर अलग होता है. ट्रेवल एजेंसी का बिलिंग का सॉफ्टवेयर अलग होता है, उसे अलग अलग तरीके का डेटा जनरेट होता है. फिर उनका जो एक आदमी उनका सिर्फ इस चीज में एंगेज्ड है कि कैसे उस डेटा को एनालाइज करे. एंड वो डेटा इतना सेंसिटिव है, इतना कॉम्प्लेक्स है वो डेटा, कि उसके लिए ऑनर को खुद को एंगेज होना पड़ता है. तो एक पार्टनर सिर्फ वही काम कर रहा है. Analyzing spreadsheet, dividing into multiple spreadsheet, getting multiple spreadsheet, clubbing multiple spreadsheet, then deriving multiple reports, फिर उससे daily incentive, weekly incentive, payment follow up, different, फिर टिकट का अलग incentive, वीजा का अलग incentive, so many things, अब वो डेटा का बेस क्या है पता है? वो डेटा का बेस है सॉफ्टवेयर से 3 रॉ मटेरियल रिपोर्ट निकलना, रॉ रिपोर्ट्स निकलती है, उससे फिर उनको मल्टीपल चीजों को डेवलप करना है. यू वॉन्ट बिलीव, वी गेव देम वन गूगल फॉर्म. ओके. उसमें वो 3 एक्सेल फाइल अपलोड करना है बस. वो भी कौन करता है? जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट. और वो जितना काम लास्ट 10 साल से एज्यूम करो कि वो आदमी एवरीडे 4 आवर्स स्पेंड करता हो, 3 आवर्स स्पेंड करता हो, उसको 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना. एंड उसको पूरा एनालाइज करके डेटा का पूरा रिपोर्ट्स मिल गया. राइट. स्प्रेडशीट का ब्रेकअप, मल्टीपल स्प्रेडशीट क्रिएशन, सेंडिंग स्प्रेडशीट, सेंडिंग ओवरड्यू रिमाइंडर्स टू डिफरेंट सेल्समैन, डेली इंसेंटिव कैलकुलेशन, वीकली इंसेंटिव कैलकुलेशन, सो मेनी थिंग्स. आप इमेजिन करो कि क्या इसका वैल्यू है कि नहीं. ऑब्वियसली वो अपना ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहा, रोज स्प्रेडशीट लेके बैठ रहा बिजनेस ओनर. अब वो यहाँ से हटे तो ग्रोथ के ऊपर स्केल करेगा, अपना स्ट्रैटेजिकली प्लान बनाएगा. राइट. तो ये एग्जांपल है बिजनेस कैसे स्प्रेडशीट्स का पे अगर आपका कमांड है तो यू कैन डू वंडर्स. तो बेसिकली एक मेजर शिफ्ट जो सीए स्टूडेंट्स को करना चाहिए अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं, तो क्या शिफ्ट चाहिए उन लोग के लिए? फर्स्ट स्टार्ट विद लर्निंग स्प्रेडशीट्स प्रॉपर्ली. सिंपल वो 8-10 फॉर्मूला एज अ स्टूडेंट भी वो सीख सकता है. दिस इज समथिंग जो आराम से वो आराम से, कोई सोचने की बात नहीं है. 100%. ओके, ऑल कैन डू. इफ आई कैन डू, एवरीवन कैन डू. वी ऑल हैव द सेम बेसिक नॉलेज. ठीक है, तो दैट इज मस्ट. So Pankaj Bhaiya, this was a actually very insightful conversation, and even I have learnt a lot. So I'm sure every CA student who are going to be aspiring chartered accountants must have learnt a lot from you. So just give me one advice जो आप सब CA students को या future chartered accountants को या जो अभी fresh बन चुके हैं उन सबको देना चाहते हो to get into this field. First of all, start using paid ChatGPT. पेड AI टूल. पेड, करेक्ट. स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाले में. हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जरूरी है. स्टॉप यूजिंग, अगर आप एक्सेल अभी भी 2007 वाला यूज कर रहे हो, पुराना वाला, सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव कम इन एक्सेल आल्सो, है ना. तो लेटेस्ट एक्सेल यूज करना स्टार्ट करो. थोड़ा सा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर, एक सब्सक्रिप्शन लेना भी पड़े तो ले लो. अबव ऑल, don't just limit your knowledge to what we have learned in syllabus. Syllabus में पढ़ना is a different thing, but real life practical problems जो है, they are a different game altogether. Correct. तो हमारी qualification mixed with this advanced, this skills, that becomes a complete package. So we must all do this. See, even my story is still a challenge because I am the, मैंने as a CA उसमें introduce किया है मैंने, so the fight is still on. Yes, it's a process actually. It's a big learning process. And AI, as I told you, learning is not only about कि skill आता है तो सब कुछ है. Selling,
उसको आपको वहां पे भी जाना है। हाँ 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 हाँ, क्लाइंट को सेल प्रैक्टिकली आउट करना वो, इज द हाँ हाँ making client to pay fees for that. Okay, हाँ so that is another challenge we have to learn. Making client to pay fees is very very, कि आप कैसा consultancy दे रहे हो, making client that he pays you for consultancy. Okay, तो आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि जिससे really उसको value मिले. वैल्यू Okay, so start using AI, mix it with the various tools which I told you. Okay, that knowledge mixed with अपने CA का जो core knowledge है, okay, that can really do wonders. करेक्ट करेक्ट थैंक यू सो मच पंकज भैया बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर एवरी सीए स्टूडेंट विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर Thank you, कमिंग पंकज भैया इट thank वाज you for inviting me. It was great having Thank you. you. So that is all, students. I'm sure you must have learned a lot from this session, right? This conversation must have opened a new possibility for all the CAs out here to take business automation as a viable and exciting career path. And do let us know in the comment section what career path you would like to choose and wish to see in our series Career After CA. Until next time, keep exploring, keep growing. Thank you so much.